Hey guys, my dear students, I'm your teacher, Professor Intizar, your friend. Today I'm going to start my teaching you English language different lessons from the platform of Heritage International College. Students, English is a dream of all students, all professionals, and almost every educated person. Each and every activity of man keeps some aim or ambition at its back. Even an activity apparently looking worthless enjoys some worth by some angle anyway. As regards English, learn to earn, learn to enjoy, learn to travel, learn to entertain others, learn to perform professional or social needs. But how to learn English puts a big question mark on our foreheads. There are various modes and ways to learn English: reading, writing, listening, speaking. All these four skills are interrelated and interdependent, connected to each other. Our today's topic relates to reading skills or study skills. Remember, students, we get bored while reading a book. Let's learn what the first thing we are supposed to do while studying some text. We need to understand the message or the main idea of a paragraph. Dear students, a very, very important point I would like to clarify. No topic of learning English language skills is confined to only BS English or MA English or the subject of communication skills of a specific university. These topics are universal, applicable to all, beneficial to all, useful to all students, people of the world. Even it's helpful in your IELTS learning or in other fields of life, everywhere, at home, at job place, on airport, or everywhere these are applicable. Now, we go more specific to our today's topic, that is topic sentence. Hurry up, students. English is easy, very easy. We make it difficult. Let's try to make it easy. Difficult is the thing what we don't understand. But if we try to make it understandable, it becomes easy. So let's see next. Words. We live in the world of words. Without words, our life, our world may become a hell. Our life may shatter. No social life is possible without words. We utter word and we show our thoughts, our desires, our intentions. Students, which one is the fundamental unit of grammar? Yes, fundamental unit of grammar is word. A word is the basic unit of grammar. Another question I would like to ask. We think in brain. Have you ever thought about this, that we think in brain in what format? Yes, we think in brain in two formats. Blended form of this format
That blended form of format is word plus image. Words make phrases. What is a phrase? A group of words within a sentence which reflects out partial meaning is called a phrase. Words make phrases and phrases make a sentence. Even a sentence can be made just by words. It is not necessary that there is a phrase in a sentence, but mostly these are found in this. A sentence is what? A sentence is a group of words which gives complete sense. It may have a punctuation mark at the end, maybe a full stop, a question mark, or some else. Paragraph. A paragraph is a group of related sentences that present and develop one main idea. It means that sentences make a paragraph which revolves around one main theme, one main idea. In Urdu, I would make it understandable that a paragraph जो है वो किसी मेन आइडिया के गिर्द घूमता है. मेन आइडिया का मतलब होता है असल बात, मेन बात. से पंजाबी में कहते हैं ना विचली गल, के विचली गल की है वो है. इट मीन्स के पैराग्राफ ऐसे सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होता है जिसमें कभी हमें ढूंढना पड़ता है कि असल बात क्या है, क्योंकि वो एक्सपेंशन होती है. एंड इन ए पैराग्राफ there are three parts. The starting is intro, second is body, and the last is conclusion. Now we go to next slide. Organized and logical sequence of words, idioms and phrases and sentences make a writing comprehensible and meaningful. It means that this one is applicable to paragraph. How a paragraph is made out? By words, by sentences, by phrases with logical sequence, meaningful sequence. इसका मतलब है कि हम जब लफ्ज़ों को, फ़िक्रों को, फ्रेजेस को, इडियम्स को सेंटेंसेस की शक्ल में ढालते हैं और सेंटेंसेस को हम मज़ीद आपस में कंबाइन करते हैं तो एक मीनिंगफुल राइटिंग वजूद में आती है, जिसे पैराग्राफ कहते हैं. पैराग्राफ जो है उसमें एक मेन थाट होता है. मेन थाट को हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यू नो कि हम किसी चीज़ को बहुत प्रिसाइज शॉर्टली भी कह सकते हैं, लेकिन बात को थोड़ा सा बढ़ाना, फैलाना और उसे बहलाना, फिसलाना ये बहुत ज़रूरी है. इट ब्यूटिफाइज आवर स्पीकिंग, इट ब्यूटिफाइज आवर मैसेज, इट ब्यूटिफाइज आवर लाइफ. सिर्फ इतना ही कहना आई लव यू और बस नहीं, बातें और भी बहुत हैं. टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस. व्हाट इज़ अ टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस का मतलब है किसी पैराग्राफ के अंदर हमें ढूंढना होता है कि मेन आइडिया क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या है, उसका मौज़ूए सुखन क्या है. ये ऐसे ही है जैसे हम छलांग लगाते हैं, बल्कि गोता लगाते हैं. गो टू वाटर एंड कैच फिश. मकसद गोता लगाना नहीं है, मकसद पानी में स्विमिंग नहीं है, मछलियाँ पकड़ना है. तो जब मछलियाँ पकड़ना है तो पूरी वारदात बयान की जाती है, मगर असल बात क्या है? कैचिंग फिश. तो मेन आइडिया क्या हुआ? कैचिंग फिश.
तो टॉपिक सेंटेंस states the main or the general idea of a paragraph. The topic sentence states the subject and the purpose of paragraph. The topic sentence in a paragraph summarizes what the entire paragraph is all about. In most academic essays, though, the topic sentence is in the beginning. यहाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि टॉपिक सेंटेंस ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट्स द क्रक्स, व्हाट इज द बेसिक थिंग, बेसिक मैसेज इन दिस पैराग्राफ. तो टॉपिक सेंटेंस तो वही है, और टॉपिक सेंटेंस जो है वो असल में उसको ढूंढना हो तो उस पैराग्राफ के मकसद को सामने रखते हैं कि उसका पर्पस क्या है, और फिर हम उस टॉपिक सेंटेंस को समराइज कर लेते हैं, उसे ढूंढते हैं कि ये सारा पैराग्राफ, ये पूरी दौड़ धूप जो है किस खातर है, ये हंगामा से जो बरपा है ये किस लिए है. और बहुत से एकेडमिक एसेस में normal practice is that topic sentence is in the beginning, in the start. तो start में होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये कहीं और भी हो सकता. Next, yes, features of a topic sentence. Features means characteristics, important things, खुसूसियात. फर्स्ट फीचर इज इट स्टेट्स द मेन आइडिया. टॉपिक सेंटेंस जो है मेन आइडिया को बताता है. इट एड्रेसेस वन एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट कैन बी एडिक्वेटली कवर्ड इन वन पैराग्राफ. तो ये जो है इट मीन्स के बड़े मौसर तौर पे, वाज़ेह तौर पे एक पैराग्राफ में एक मेन आइडिया को इजीली बयान किया जा सकता है, यानी किसी मैटर के एक पहलू को. इट कंट्रोल्स द अदर सेंटेंस इन द पैराग्राफ. और इस तरह टॉपिक सेंटेंस का हमें ये फ़ायदा है कि हम जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं और उनमें जो उनका सिग्निफिकेंस है, मुख्तलिफ तरह के जो पहलू हैं उनको हम आपस में इंटरमिंगल नहीं करते, हम ख़यालात को गुत्थम गुत्था नहीं करते, उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सेग्रीगेट करते हैं. तो टॉपिक सेंटेंस का ये फ़ायदा है, ये कंट्रोल करता है आइडियाज़ को, उसकी लिमिटेशंस को, उसकी बाउंड्रीज को. इट्स मोर जनरल दैन द सेंटेंस दैट डेवलप इट. और जो टॉपिक सेंटेंस है ये ज़्यादा वास्ट होता है, जनरल होता है, और इसमें हम बहुत ज़्यादा कोई पेचीदगी नहीं होती. टॉपिक सेंटेंस और पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें बहुत से लफ्ज़ों से वास्ता पड़ता है, समटाइम्स वी फील बोरिंग. लेकिन जो टॉपिक सेंटेंस है वो उसकी कह लें प्रेस ही है, और जो फ़िक्रों को आगे बढ़ाने में मदद करता है. टॉपिक सेंटेंस हमारे पास है, फ़र्ज़ करें कि हम करते हैं कि जहाँ से हमने लाहौर कैसे जाना है, तो हम उसी पे बात करेंगे. बाय रोड जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय एयर जाना है, या कैसे जाना है. हम पेशावर की, ढाका की, कराची की, न्यूयॉर्क की बात नहीं करेंगे. तो इसका फ़ायदा है. टाइप्स ऑफ टॉपिक सेंटेंस के टॉपिक सेंटेंस किस किस शक्ल में, किस किस्म के होते हैं. तो इसकी दो टाइप है मेन. एक तो है स्टेटेड और ऑब्वियस टॉपिक सेंटेंस, एंड सेकंड वन इज इम्प्लाइड टॉपिक सेंटेंस. जो फर्स्ट काइंड है, इट मीन्स के ऑब्वियस टॉपिक सेंटेंस, दैट इज द टाइप ऑफ टॉपिक सेंटेंस दैट इज करेक्टली एक्सप्रेस्ड इन द पैराग्राफ. इट मीन्स के जो ऑब्वियस, वाज़ेह, क्लियर, ज़्यादा हमें गौर नहीं करना पड़ता टॉपिक सेंटेंस क्या है इस पैराग्राफ का. ये होता है कि आमतौर पे वो उसमें ज़िक्र होता है पैराग्राफ में, वो किसी सेंटेंस की शक्ल में, मेन लफ्ज़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं. तो हम इसे कहते हैं ऑब्वियस, एपरेंट, क्लियर कट टॉपिक सेंटेंस, विजिबल ईजीली इन द पैराग्राफ.
लेकिन जो सेकंड वन इज इम्प्लाइड टॉपिक सेंटेंस। इम्प्लाइड का मतलब होता है छुपा हुआ, अंडरस्टूड। दिस इज द टाइप ऑफ टॉपिक सेंटेंस दैट इज नॉट स्टेटेड इन द पैराग्राफ। तो इसका पैराग्राफ में जिक्र नहीं होता, मगर हम अपने पास से उसे अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी अक्ल सलीम को यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं एक पैराग्राफ है कि एक बंदा जा रहा था सड़क पर, छतरी ताने, अम्ब्रेला था उसके हेड के ऊपर। ऑफ कोर्स उसमें यह नहीं लिखा कि बारिश थी या बहुत धूप थी, लेकिन यही दो मकसद हो सकते हैं। तो ये इम्प्लाइड मफहूम ये है कि जो मौसमी असरात हैं उससे बचने के लिए, धूप से या बारिश से बचने के लिए उसने अम्ब्रेला लिया हुआ था। तो ये इम्प्लाइड है। कहते हैं ना, वो शायद परवीन शाकर का या किसका है एक शेर के सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। लफ्ज़ों की तो कोई बात नहीं, लहजे मार देते हैं। तो उम्मीद है कि ये दो टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी, वेरी इजी। एक है एपेरेंट टॉपिक सेंटेंस, एक है इम्प्लाइड। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटेड टॉपिक सेंटेंस। The newspaper you read every day and the book you study were trees once. Your home, your furniture, your clothes come from trees. In addition, forests provide a wonderful place where we can hold picnics and have a good time. Now let's see this paragraph. It's talking about different aspects of life which are related to ultimately to trees. So here we can say that trees are very essential in our lives. This is the topic sentence के हमारी ज़िंदगी में हम पिकनिक भी मनाते हैं, घर में भी, फर्नीचर भी हमारे पास है, कपड़े पहनते हैं, जंगलों में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, पिकनिक करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है किताबें पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें बनती हैं दरख्तों से, और दरख्त कहाँ होते हैं? जंगलों में। तो जहाँ जहाँ भी दरख्त होते हैं, तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये है टॉपिक सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। एंड इट वाज टॉपिक सेंटेंस, visible topic sentence, easily identifiable. But the second example of implied topic sentence, implied का मतलब होता है understood, कि उसका जिक्र नहीं होता लफ्ज़ों की शक्ल में, मगर वो हमें खुद अपनी अक्ल सलीम, कॉमन सेंस को यूज़ करके ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैराग्राफ है हमारे पास। समटाइम्स इन द इवनिंग, इम्प्लाइड टॉपिक सेंटेंस, उसकी एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है कि समटाइम्स इन द इवनिंग ब्रूनो मार्स वुड सिट आउट इन द फ्रंट ऑफ रेंच हाउस नियर द कैटल गार्ड्स एंड प्ले म्यूजिक। अब इसमें आपसे पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, यू वुड फाइंड नथिंग द टॉपिक सेंटेंस इन द शेप ऑफ वर्ड्स, बट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड यूजिंग योर कॉमन सेंस। यू वुड कम टू नो that the topic sentence is this one. The issue, main core issue is here, this one. So types of topic sentence के अलावा we have another idea aspect of studying the topic sentence. कि topic sentence may be located where? It may be in the beginning of the paragraph, or it may be in the middle, it may be in the end. So first of all, topic sentence
is mostly found in the start of the sentence. Topic sentence is usually found at the beginning of paragraph, where it gives a preview of and direction to the sentence that comes after it. तो पैराग्राफ में हम जब पढ़ते हैं तो नॉर्मली ये 80% टाइम्स इट हैपन्स के इट इज़ फाउंड इन द फर्स्ट सेंटेंस, लेकिन ये और कहीं भी हो सकता है. ये इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल. हम अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके देख सकते हैं कि ये कहाँ है, लेकिन अमूमी तौर पे ये पहले फ़िक्रे में ही छुपा हुआ होता है, क्योंकि इसमें आमतौर पे पहले फ़िक्रे में ही उसका जो मकसद है, पर्पज़ है, वो बयान किया जाता है किसी चीज़ का, और आगे उसको एक्सपेंड किया जाता है. तो उसकी लोकेशन की बात की, टॉपिक सेंटेंस की लोकेशन जो है मैंने बताया 3 है, इन द स्टार्ट, इन द मिडल, इन द एंड. तो इसको हम नेक्स्ट देखते हैं. नाउ वुड स्टडी के एग्जाम्पल है अ ब्राउन आउट फॉर स्टूडेंट्स वुड बी horrendous disaster. The students will not be able to check their mail, they can't receive their emails even, they can't use the fax machines too. In this paragraph, the example, we see that the topic sentence is found in the very beginning of the paragraph. Another example for the topic sentence in the beginning, student life today is not what it was then. Students log on to websites instead of going to libraries. Computer look for grammatical and typographical errors in their papers, unlike before when students would reviewed, reread and re-edited their work for us. Here in this paragraph, just देखें कि जो टॉपिक सेंटेंस है कि पुरानी ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी में क्या फ़र्क था, कंप्यूटर ने क्या कर दिया, लाइब्रेरी पहले जाना पड़ता था, अब कंप्यूटर सारे काम करता है. तो ये टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट में है, स्टूडेंट लाइफ टुडे इज़ नॉट बट इट वाज देन इन द पास्ट. तो ये स्टूडेंट लाइफ की जो काम करने की सलाहियत है, उसमें जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता था पहले नहीं किया जाता था, तो क्या, तो ये स्टूडेंट लाइफ के बारे में है और ये स्टार्ट में है टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस मे बी एट द एंड, समटाइम्स इट्स इन द एंड. concluding sentence may be a topic sentence. Just we read it. However, topic sentence comes at the end of the paragraph where it draws a conclusion or functions as a summary. तो बाज़ ऐसा होता है कि पैराग्राफ के आखिर में उसे ख़ुलासे के तौर पे अल-मुख्तसल अल-गर्ज़ लिख के तो हम कहते हैं कि यही है, ये बात है. तो हम देखते हैं कि समटाइम्स टॉपिक सेंटेंस मे बी लोकेटेड एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ. एग्जाम्पल ऑफ टॉपिक सेंटेंस इन द एंड, ये देखते हैं. वी रीड इट आउट. द मेन एयर around a lake invigorates and pleases me. I like a lake's underwater life, such as rainbows, minnows, and trout, and I enjoy observing the plant life around me. Most important, a lake usually has no chemicals because lake water is clean, natural, and more refreshing for swimming. I prefer swimming in a mountain lake. Here you see, इसमें यह बताया गया है कि जो पहाड़ों के एरिया में लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, मैं वहाँ बहुत खुश होता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ. वहाँ जो अंडर वाटर लाइफ है, तो उसमें ट्राउट मछलियाँ होती हैं, इस तरह की आबी मखलूक है. तो मैं वहाँ जाता हूँ. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिकल फ्री वाटर होता है, ये कोई नुकसान नहीं देता, इसे पी भी सकते हैं. तो ये बड़ा रिफ़्रेशिंग है, ये ताज़ा हवा का झोंका मुझे मिलता है. तो आखिर में लिखा है आई प्रीफर स्विमिंग इन ए माउंटेन लेक.
इसका मतलब है कि मैं तो तरजीह देता हूँ कि जो पहाड़ी झीलें हैं वहाँ पे मैं स्विमिंग इंजॉय करूँ। तो इसका मतलब है एट द एंड है, ये एग्जांपल थी टॉपिक सेंटेंस के एंड पे होने की। Now we'll talk about the topic sentence may be situated in the middle of the sentence, middle of the paragraph. Topic sentence less frequently comes in the middle of the paragraph, especially when the paragraph is part of a longer piece of writing. Here we have given an example about this. The bird next to me was immature. He still had brown and tawny plumage instead of the predominantly black color of the adult. For one thing, he may never have seen another human being. But there is a better explanation. In remote Galapagos Islands, there are hardly any land mammals, and the hog is very nearly the sole predator. When no enemies and almost no competitors, it has nothing to fear and plenty to eat. अब इस एग्जाम्पल में यू कैन सी के बताया गया है बर्ड्स जो हैं, छोटे बर्ड्स इमेच्योर जब होता है तो वो क्या है कि उनकी जो ज़्यादा हिफाजत है कहाँ होती है, तो इसके बीच में है कि फ्रॉम वन थिंग ही मे नेवर हैव सीन एन अदर ह्यूमन बीइंग। क्या होता है कि जो जंगलों में पैदा होते हैं, दूर दराज इलाकों में पैदा होते हैं छोटे बच्चे, उन्होंने इंसान तो देखे नहीं होते, वो होते ही जंगल में हैं। तो इसमें भी जो मेन आइडिया है वो क्या है, बीच में है। Next is the idea that a topic sentence may be situated at both places in the beginning and in the end. ऐसा भी हो सकता है। In this type, if the paragraph is meant as a freestanding unit of discourse and not part of a larger whole, the topic sentence, or rather the ideas it contains, are frequently restated at the end of the paragraph. मीन्स के जब कोई बात की पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ में क्या होता है कि पैराग्राफ के शुरू में भी वो बात कर दी जाती है, मेन आइडिया जिक्र किया जाता है और आखिर में भी वो किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो शादी कार्ड होते हैं तो इनवाइट किया जाता है, पूरा लिखा होता है, तो आखिर में साइड पे लिखा होता है ताकीद मज़ीद। तो ये ताकीद मज़ीद है, 2 टाइम्स उसे रिफ़्रेश किया जाता है, उसे रीहियर्स किया जाता है, उसे दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है 2 जगहों पे। Here is example for the topic sentence repeated twice in the beginning, at the end. Energy simply makes our life more comfortable and convenient. Suppose you wanted to stop and reverse the economic progress of this nation. What would be the surest and quickest way to do it? Find a way to cut off the nation's oil resources. Industrial plants would shut down, public utilities would stand idle, and all forms of transportation will halt. The country would be paralyzed, and our economy would plummet into the abyss of national economic ruin. In short, energy is one of the reasons why we have an adequate life nowadays. इस पैराग्राफ में कि एनर्जी का जिक्र किया गया है कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी। तो इनमें इसके स्टार्ट में भी आप देख लें पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस है, एनर्जी सिंपली मेक्स आवर लाइफ डेली लाइफ्स मोर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, और एंडिंग जो सेंटेंस है, इन शॉर्ट एनर्जी इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई वी हैव एन एडिक्वेट लाइफ नाउअडेज। तो उसमें भी इसको रिपीट किया गया है। तो रिमेंबर, टॉपिक सेंटेंस आपने ढूंढना हो तो आप स्टार्ट में तो होता ही है, लेकिन जहाँ लिखा हो टू कंक्लूड, इन शॉर्ट, अल मुख्तसर, बस यूँ समझिए कि सो एंड सो, तो वो टॉपिक सेंटेंस इसका मतलब है दोहराया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
for watching this video. I hope you have got some concept clearer about topic sentence. Topic sentence ही basic चीज़ है. Whenever you read some text, some essay, some article, some chapter of the book, try to locate, find out the significance, find out the topic sentence, main idea. ज़रूरी नहीं लिखा हुआ हो या लिखा हुआ भी हो सकता है, लेकिन हमें खुद we have to use our common sense और हम टॉपिक सेंटेंस को समझ जाते हैं तो समझ लें हमारी जो रीडिंग स्किल है बेटर हो गई. तो रीडिंग स्किल के बेटर होने का फ़ायदा यह है कि हमारी इंग्लिश बेटर होगी और हम बेटर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकेंगे चीज़ों को और हमें हेडेक नहीं होगी, हम बोर नहीं होंगे, बल्कि वुड फाइंड आवर इंग्लिश मोर क्लियरर and friendly and polished. Thank you very much. God bless you, my dear students.